आप 2 मिनट ट्राई कर लेंगे एक बार रिप्ले करके, हैं? So we will discuss today the lasers. It's new topic, new section, laser. Laser is a short form of a process that is called light amplification by so it's a light amplification by stimulated emission of radiation, that is LASER, right. So basically what we do here, we amplify the radiation, light को amplify करके we get the high intensity light beam, okay. And how it is done? It is done through the stimulated emission process. स्टिमुलेटेड इमिशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम इसको लेज़र अचीव करते हैं. एंड इफ यू सी दिस स्टिमुलेटेड इमिशन, हियर इज द टर्म इमिशन. सो बिफोर गोइंग टू स्टिमुलेटेड इमिशन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इमिशन. सो इमिशन, what we mean by emission, you see, if you have an atom or molecule, and if you give energy to the atom or molecule, getting that energy, atoms, electrons inside the atom will get excited to higher states. Normally atom के अंदर क्या है, you have electrons in inner shell orbitals. When you give energy, some of the electron may jump to outer orbitals. That depending upon how much energy you are giving, you must give energy between the energy difference between two energy levels. कोई some inner level और outer unfilled level जो होगा, उसके बीच जो energy gap होगा, उसके equivalent आप energy देंगे. Then getting that energy, electron will be jumping to higher state, that we call atom in the excited state. Normally by itself all atom remain in the normal state, that is no excited, that we call ground state. Ground state means all electrons are in the inner shells, lower shell filled, but when we give energy they get excited. So when you excite the electrons inside the atom, so we say electron is excited to higher energy state, but we refer the term that as if atom is excited. Atom excited का मतलब है electron inside the atom is in the हायर स्टेट. कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी इनर स्टेट से किसी आउटर स्टेट में गया है, वो किसी भी स्टेट में जा सकता है, और कहाँ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि उसको कितनी एनर्जी मिल रही है. इक्वलेंट टू दैट एनर्जी वो जंप करेगा. सो एंड दिस एक्साइटेड स्टेट इज द टेम्परेरी स्टेट. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड जंप टू हायर स्टेट विल नॉट रिमेन देयर परमानेंटली. It remains there for very short duration, something microsecond, nanosecond, picosecond. That is the lifetime of that state, and immediately after that it has to come back, come down to the lower state. So when it come down to lower state, it releases that extra energy, because lower energy level जो is low state का है और higher energy level में उसकी energy ज़्यादा थी, तो जब वो lower state में वापस आएगा, extra energy will be released. So this extra energy difference between the excited level and the lower ground state, lower level जहाँ से वो गया था, जहाँ से excite होके गया था, इसका मतलब वहाँ पे vacancy exist कर रही है, तो वहाँ पे वो वापस आ जाएगा. So when it come back to lower state, it releases that extra energy. वो extra energy को release करेगा, and this extra energy released in form of, in two ways. Either it is given as a heat to the surrounding, or it is emitted in form of radiation. Okay,
सो इफ इट इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन का मतलब है एक लाइट इमिट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड इमिशन. This process is called emission. So when any excited atom come back to lower state, come back to ground state, then extra energy is released in form of radiation, and that is called emission process. So this is generally emission. Einstein in 1917 आइंस्टीन इन 1917 proposed, इन्होंने एक आइडिया दिया कि इफ यू हैव एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, एंड इफ यू अलाउ रेडिएशन टू फॉल हियर, कोई सिस्टम है, सॉलिड है, गैस मिक्सचर है, सब लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और उसमें अगर आप एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट में गया है और कोई लोअर स्टेट खाली है. तो अगर ये लोअर स्टेट खाली है, देयर मस्ट बी सम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, इफ यू अलाउ सम एच न्यू, अगर कोई एच न्यू रेडिएशन लाइट रेडिएशन अगर इस वेवलेंथ का यहाँ पे फॉल होता है, then there is chance कि ये excited atom get disturbed by this incident radiation. This excited atom electron will be disturbed by the incident H nu photon. Due to this disturbance, it will come down to lower state, and it come down to lower state, you will get emission of रेडिएशन. बट नाउ यू विल हैव टू फोटोन, एक जो पहले से आ रहा है वो भी होगा और एक नया इमिट हुआ है, एक ये होगा. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन. सो आइंस्टीन सेड कि अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उस समय किसी मैचिंग फ्रीक्वेंसी का फोटोन मीडियम में जाता है, देन दैट फोटोन may disturb the excited atom, and due to this disturbance there will be emission of another photon, and speciality of this newly emitted photon is that the two photon will travel in same direction. The two photon will be of same wavelength, they will be in same state of polarization. So the two will be highly coherent, and once the two are highly coherent, they will add constructively, their intensity will be doubled, amplitude will be added. Okay? So this was just proposition by Einstein कि stimulated emission हो सकता है. Okay, it was his viewpoint, just his thought कि ऐसा हो सकता है. ओके, इसी चीज़ को फिर आगे जब फर्दर एनालाइज किया गया तो उसके लिए फिर हम थोड़ा इसको और मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे. फॉर दैट लेट अस टेक सम एटॉमिक मीडियम, लेट्स टेक ए मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स, आयन्स और मोलिक्यूल. कुछ एक मीडियम है जिसमें हमारे पास कुछ एटम्स है. ओके, वी हैव सम नंबर ऑफ एटम इन ए कंटेनर, and let us suppose in this container you have n1 atom in energy state E1 and you have n2 atom in energy state E2. ओके, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे कि अगर ये एटम है तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप टू दीज लेवल्स, और बाकी आउटर लेवल जो है एम्प्टी है होंगे. ऐसा ही होता है ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप टू इनर
ऑर्बिटल्स, आउटर शेल्स आर एम्प्टी। एक्साइटेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल इमिट फ्रॉम आइदर दिस टू दिस, हियर टू हियर और हियर टू हियर, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एनर्जी यू प्रोवाइड। ओके, तो उससे क्या होगा, एटम विल बी एक्साइटेड। तो दिस इज single atom in the ground state. Let us suppose you have some another atom where it is excited to this state. यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई, एक और एटम है जिसमें कि this atom is in the excited state, और excited state में कहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन excited to some higher level। तो इसको हम रेफर करेंगे, सपोज अगर ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, तो ये तो हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एटम। दिस वी कॉल ग्राउंड स्टेट एटम कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट एटम हो गया। और इसको कहेंगे हम एक्साइटेड एटम है। तो एक्साइटेड एटम है, तो एक्साइटेड एटम जब होगा तो आप रेफर करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में गया है, तो इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, एटम एक्साइटेड स्टेट E4 में है। हो सकता कोई दूसरा एटम एक्साइटेड स्टेट E3 में है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन E3 में गया होगा, है ना। दिस इज व्हाट वी मीन बाई E1 E2। सपोज इन द गिवन गैस कंटेनर और इन ए सॉलिड मीडियम you have N1 atom per unit volume in energy state E1 and N2 atom in state E2. Okay, and let us say some H nu equal to E2 minus E1. E2 higher state है, E1 lower state है। Suppose atom, suppose a photon of energy difference E2 minus E1 allowed to fall on this medium। एच न्यू एनर्जी का फोटोन जो है इस मीडियम के अंदर आप डालते हैं, और एच न्यू एनर्जी कितनी है, ये है E2 माइनस E1 के बराबर। ओके, सम फोटोन्स आर इन स्टेट, सम एटम आर इन स्टेट E2, सम एटम आर इन स्टेट E1। अब ये आपका कोई मीडियम है, इसमें लगातार आपका एच न्यू एनर्जी यहाँ पे गिर रहा है। जब एच न्यू एनर्जी यहाँ पे फॉल हो रहा है, दिस एच न्यू एनर्जी may be absorbed by atom in state E1। एक्साइटेशन कैसे होता है, एनर्जी गेन करता है एटम, लेता है और उस एनर्जी को लेके वो हाई स्टेट में चला जाएगा। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है कि एटम विल गेन एनर्जी एंड इट विल जंप टू सम हायर स्टेट, और ये तब होगा जब उसको उतनी एनर्जी मिलेगी जो कि उस ग्राउंड स्टेट और हायर स्टेट के बीच का डिफरेंस के बराबर है। ओके, सो जब एच न्यू एनर्जी व्हेन फॉल हियर, देन देयर इज चांस कि एटम में गेट एक्साइटेड टू स्टेट E2। E1 से E2 में चले जाएंगे, जो एटम E1 में है वो कहाँ चले जाएंगे, E2 स्टेट में चले जाएंगे, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, नाउ once atom are going to excited state, then there is chance कि कोई excited atom ground lower state में अपने आप से आएगा by spontaneous emission, क्योंकि वो permanently तो वहाँ रह नहीं सकता, it has to come back to the lower state, तो spontaneous emission होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई Hν फोटोन excited atom से interact करे, उससे क्या होगा, उससे स्टिमुलेटेड इमिशन हो जाएगा, एक्साइटेड एटम लोअर स्टेट में आ जाएगा और 2 फोटोन आपको मिलेंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि अगर आपके पास एक मीडियम है जिसमें आपने एटम्स को डिफरेंट एनर्जी स्टेट में रखा है और आप एच न्यू एनर्जी डाल रहे हो, तो देयर विल बी डिफरेंट ट्रांजिशन। कुछ एब्जॉर्प्शन होंगे, उससे एटम E1 से E2 में जाएंगे, कुछ स्पॉन्टेनियस इमिशन होंगे जिससे E2 से E1 में वापस आएंगे, कुछ स्टिमुलेटेड इमिशन होंगे उसमें भी वो वापस आएंगे। ओके, एंड इफ यू अलाउ दिस प्रोसेस टू गो फॉर सम टाइम, ओके, तो एक जब स्टेडी स्टेट सिचुएशन बनेगी तो क्या होगा,
In steady state situation, number of upward transition will be equal to number of downward transition. Upward transition कैसे हो रहे हैं? By absorption. फोटोन एटम हायर एनर्जी स्टेट में कैसे जा रहे हैं? बाई एब्जॉर्प्शन. और एटम हायर से लोअर में आ रहे हैं बाई इमिशन. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एब्जॉर्प्शन ही होता रहे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता रहेगा तो हायर स्टेट में जो है तो वो भी तो वहाँ माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड टाइम तक रहेंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे. ओके तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी, स्टेबलाइज, जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, इन दैट केस नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन. वो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि अपवर्ड ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर तो सारे के सारे एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. ऐसा भी नहीं हो सकता कि डाउनवर्ड ट्रांजिशन ही हो रहे. डाउनवर्ड कहाँ से होंगे? अगर एक्साइटेड में होंगे तभी तो डाउनवर्ड हो सकते हैं. सो फॉर इक्विलिब्रियम सिचुएशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन में नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन. ओके सो फॉर दैट लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन, नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन. ओके सो नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन. ओके सिस्टम के अंदर कितने अपवर्ड ट्रांजिशन होंगे? लेट अस राइट τ1 2. τ1 2 is number of atom going to higher state. Okay, number of upward transition, upward absorption, number of absorption, कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए ना. सो ये जो होगा τ1 2, τ1 2 है नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब एक यूनिट टाइम और यूनिट वॉल्यूम के अंदर ओवर हमने लेना है. एंड ये जो एच न्यू एनर्जी फॉल हो रही है, सपोज वी हैव यू न्यू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. यू न्यू यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू. जब आप लाइट डालेंगे तो उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है. कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी? जिसके लिए न्यू उसका एनर्जी डिफरेंस से मैच करेगा, तो वही रेडिएशन यूज होगा जो न्यू फ्रीक्वेंसी का होगा. ओके तो जब आप लाइट डाल रहे हो तो उसमें एनर्जी डेंसिटी, हाउ मैनी फोटोन्स आर देयर इन दैट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, वही तो यूज होंगे. डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, कितने ज़्यादा गिर रहे हैं. ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होंगे, कम फोटोन गिरेंगे तो कम एब्जॉर्प्शन होंगे. ओके सो τ1 2 विल इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू. यस और नो? नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन विल बी प्रोपोर्शनल टू यू न्यू. जितने ज़्यादा इंसिडेंट फोटोन होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस एब्जॉर्ब होने के हैं. ओके इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू n1. लोअर स्टेट में एटम होना चाहिए, अगर एटम ही नहीं है तो फिर ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? तो बहुत सारे एटम होंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं. ओके सो ये जो अपवर्ड ट्रांजिशन है ये दो बातों पे निर्भर करेगा, एनर्जी डेंसिटी क्या है और लोअर स्टेट में कितने एटम हैं. ओके इसको जब हम कंबाइंड करेंगे तो वी कैन राइट प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके इक्वलिटी साइन लाएंगे, एडिंग कांस्टेंट B1 2 n1 u न्यू, इक्वेशन 1. ओके वेयर B1 2 इज एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. यह है एब्जॉर्प्शन, किस रेट से एब्जॉर्ब होगा. अब किसी मीडियम में एटम के ऊपर एच न्यू एनर्जी का फोटोन गिर रहा है, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा. मतलब उसकी अपनी एक कुछ और भी फैक्टर्स होंगे जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे. ओके अगर आप दो डिफरेंट मीडियम ले लेते हो
दोनों में अगर आप HCU डालते हो तो हो सकता है एक सिस्टम में ज़्यादा इजीली ट्रांजिशन हो, दूसरे में थोड़ा कम हो, तो वो आपके मीडियम के ऊपर मीडियम प्रॉपर्टी होगी। वो मीडियम प्रॉपर्टी एक तरह से इस कांस्टेंट में इंक्लूडेड है कि जरूरी नहीं कि दोनों सिस्टम में बराबर ही चांसेस हों एब्जॉर्प्शन के। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस। नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन कैसे हो सकते हैं? बाई स्टिमुलेटेड इमिशन। डाउनवर्ड के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन हो सकता है। ओके, नंबर वन। सो नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन T21. Okay, number of downward transition by stimulated emission to T21 is proportional to, again it will be proportional to u nu. ये u nu पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? एक्साइटेड स्टेट में एटम तो हैं बट फोटोन ही नहीं गिर रहा है। फोटोन होगा तभी तो वो स्टिमुलेट होके डिस्टर्ब होके वापस आएगा, डाउन रहा है। ओके, इट इज प्रोपोर्शनल टू N2 आल्सो। जितने एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम होंगे उतने ही उनके डाउनवर्ड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये जो है N2 पे डिपेंड करेगा, u nu पे डिपेंड करेगा। ओके, सो कंबाइनिंग द टू वी कैन गेट T21 इक्वल टू B21 N1 N2 and u nu। ओके, इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। ओके, सेकंड केस है फॉर डाउनवर्ड ट्रांजिशन। डाउनवर्ड ट्रांजिशन सेकंड केस बाई स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इमिशन कौन है? इमिशन बाई इटसेल्फ, जो अपने आप से हो रहा है। आपने एक्साइट किया, कुछ समय के बाद वो अपने आप ही डाउन आ जाएगा। और स्टिमुलेटेड में क्या है? स्टिमुलेटेड में विद द हेल्प ऑफ फोटोन। स्टिमुलेटेड इमिशन जब फोटोन इंड्यूस्ड है और स्पॉन्टेनियस इमिशन अपने आप से ही है। ओके, सो दैट इज U21। इसको हम U21 सिंबल से लिखेंगे। नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 2 to 1 बाई स्पॉन्टेनियस इमिशन, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या ये u nu पे डिपेंड करेगा? इट विल नॉट डिपेंड, बिकॉज ये अपने आप से होंगे। किस पे डिपेंड करेगा? N2 पे करेगा। जितने एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम होंगे उतने ही चांसेस उनके रिवर्स डाउन होने के ज्यादा होंगे। सो हियर वी कैन राइट U21 इक्वल टू A21 N2। Okay, here B21 is stimulated emission rate constant. The constant used here B21 is, it is stimulated emission rate constant. Okay, and A21 is another constant, spontaneous emission rate constant. Okay, so in state of equilibrium, in state of equilibrium, a number of upward transition should be equal to number of downward transition, right? होगा ना? So using these three equation, we can write number of upward transition B12 N1 u nu equal to B21 N2 u nu plus A21 N2.
Okay. So, substituting values from these three equations, हाँ ये तो हो गया. Now we will solve it. So it is B12 N1 minus B21 and 2 U new equal to A21 and 2. Okay, or U new equal to A21 and 2 upon B12 N1 minus B21 and 2. Okay, or we can write it A21 and 2 over B21 common, it is B12 upon B21 N1 minus N2, or it is A21 upon B21 B12 upon B21 N1 upon N2 minus 1 union. Equation 5. You write equation 4. Okay. So now according to प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आपने पढ़ा होगा. ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आता है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, equation number 6. According to Planck's radiation law, energy density of the radiation with frequency nu जो होगा, that will be 8 pi h nu cube upon c cube 1 upon exponential h nu by kT minus 1. ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है ना. ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आता है कि अगर किसी बॉडी से, ब्लैक बॉडी से या कहीं भी बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, तो किसी टेम्परेचर टी पर, ब्लैक बॉडी मतलब अगर आप इस बॉडी को हॉट किया है तो किसी टेम्परेचर टी पर न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन कितना होगा, हाउ मैनी फोटॉन्स विल बी देयर पर यूनिट एरिया पर सेकंड इन दैट बीम फ्लक्स, है ना, वो है एनर्जी डेंसिटी. ये स्टैंडर्ड प्लैंक्स लॉ है. ओके, सो वी विल कंपेयर दीज इक्वेशन 5 विद 6. ओके, इसको इसके कंपेयर करेंगे, बट बिफोर दैट एक स्टेप रह गया. वी विल सॉल्व इक्वेशन 5 लिटिल मोर. एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ है, ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको. इट सेज दैट n इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू n0 एक्सपेंशियल माइनस e अपॉन kt.
मतलब अगर आपके पास कोई एटम्स हैं और एटम कैन गो इन डिफरेंट स्टेट्स, E1, E2, E3, E4, E10, बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हैं. ओके, तो इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एटम्स इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट, देन number of atoms in energy state E at temperature T n. Okay, at temperature T, number of atom at energy state E जो होगा that will be n0 time this, where n0 क्या है? total number of atoms. अगर आपने एक कंटेनर में 1000 एटम्स ले लिए, मिलियन एटम ले लिए, तो मिलियन उसमें क्या होगा? एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. ओके, E1, E2, E3, E6, E8. अगर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, ओके, एंड इफ यू आर हीटिंग द गैस मिक्सचर और एटॉमिक मीडियम, तो एटम्स क्या है? डिफरेंट एनर्जी स्टेट में एक्साइट होंगे. तो एक्साइट होने के बाद वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका? कितने एटम किस स्टेट में होंगे? हाउ द एटम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? उसके लिए जो गवर्निंग लॉ है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ है, और वो लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम इन एनी एनर्जी स्टेट E is proportional to this factor. Proportional to this factor है, और टोटल कितने होंगे? n0. नंबर ऑफ एटम इन दैट स्टेट होंगे n0 का दिस मल्टीपल. n0 क्या है? टोटल. टोटल का दिस मच फ्रैक्शन जो होंगे E1 स्टेट में होंगे. तो फ्रॉम दिस लॉ अगर बहुत सारी स्टेट्स हैं, देन वी कैन से नंबर ऑफ एटम इन एनर्जी स्टेट E1 विल बी n1, number of atom in energy state n2 will be n2, like E2 upon kT. Can we write like this? क्योंकि ये जनरल पहले वाला जनरल एक्सप्रेशन था. किसी एनर्जी स्टेट E पर नंबर ऑफ एटम जो है एक्सपोनेंशियल उस फैक्टर के प्रोपोर्शनल होंगे. तो अगर हम दो स्टेट्स ले लेते हैं E1 और E2, तो E1 E2 में नंबर ऑफ एटम n1 n2 जो होंगे, वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, so from here n1 upon n2, from here n1 upon n2 will be cancelled, n0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 upon kT. Okay, and that is E2 minus E1 is your h du upon kT. 6. So n1 upon n2 here in equation 5 we will write from equation 7. Okay, so using equation 7 in 5 we get u nu equal to A21 upon B21, B12 upon B21 E h nu upon kT minus 1. This equation 8. Okay. Comparing equation 6 and 8. अब जो 6 और 8 को हम कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करें, देन व्हाट यू कंक्लूड, क्या आपको रिजल्ट मिलता है इफ यू कंपेयर इक्वेशन 6 विद इक्वेशन 8. यस, ऑब्जर्व करके बताइए कि इफ यू कंपेयर द टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन राइट. कंपेयरिंग 6 and 8 we get B12 upon B21 should be 1. This means B12 should be equal to B21, or
or we can say A21 upon B21 equal to 8 pi h nu q upon cq. Yes, these are the two conclusions which we can draw from here. Okay, comparing the two. क्योंकि कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्सपेंशियल का टर्म 1 आ रहा है ना, कंपेयर करने से मतलब वो B21 बाई V12 1 होना चाहिए और आउटसाइड जो फैक्टर है वो A21 बाई B21 हो गया, राइट. सो B12 इक्वल टू B21, what it mean? B12 equal to B21 means absorption rate constant is equal to stimulated emission rate constant, or probability of absorption is equal to probability of emission by stimulated emission. ये मतलब हुआ इसका रेट कांस्टेंट. ये दोनों रेट ये एक तरह से प्रोबेबिलिटीज है, एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी है और एक है स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोबेबिलिटी. तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए फोटोन इज पासिंग थ्रू मीडियम देन देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी कि ये एब्जॉर्ब भी हो सकता है और ये इमिशन भी करवा सकता है. इसका मतलब ये हुआ. Okay, if any h nu photon travel through the medium, then this traveling photon through the medium can get absorbed, making transition from E1 to E2, or it can stimulate excited atom to go to ground state. Equal probability है. और ये किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा कि ट्रैवलिंग फोटोन उसको कौन सा एटम पहले मिल जाता है. अगर ट्रैवलिंग फोटोन को एक एक्साइटेड एटम मिल गया तो उसको स्टिमुलेट कर सकता है, और अगर उसको ग्राउंड स्टेट एटम मिलता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. तो अगर हम चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन हो, हम चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़े या स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा हो, तो वो कैसे करवा सकते हैं? फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाउ वी कैन मेक स्टिमुलेटेड इमिशन हैपन क्वाइट फ्रीक्वेंटली? नहीं, वो तो दोनों बराबर है, रेट कांस्टेंट तो दोनों बराबर है, बट हम चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन हो, एब्जॉर्प्शन ना हो. Yes. So to make more stimulated emission, requirement is that we need to have more atom in the excited state. अगर सिस्टम के अंदर more atom in the excited state हैं तो there are chances कि stimulated emission ज़्यादा होंगे. और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें excited atoms कम हैं, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा एटम है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. ओके, सो to get more stimulated emission, requirement is that we need to have more atom in the excited state. Okay, but what is the normal distribution? ये जो अभी हमने स्केच किया है, एक नॉर्मल सिस्टम के लिए what is the normal situation? Normal situation is that any lower state is highly populated than upper. According to this Maxwell distribution law, any higher state is less populated than lower one, any lower state is much populated than upper state. Okay? तो अगर सिस्टम इस तरह का है, यहाँ पे अगर h nu फॉल करता है, h nu could be of this matching, h nu could be of this energy matching, कोई भी हो सकता है. तो ये क्या होगा यहाँ पे? h nu को क्या होना? h nu will make more absorption or emission? More absorption. Okay, more absorption होंगे नॉर्मल सिचुएशन में. तो हमें चाहिए है स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा है. तो स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा होने के लिए we need to create more atom in higher state than in lower state. किसी एक एनर्जी पेयर, कोई एक पेयर ले लेंगे लेवल,
पेयर ऑफ टू एनर्जी लेवल, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कोई सा ले लो, you choose a pair of two labels and you create situation such that there are more atom in upper level than in lower level. Okay, and that situation will be something like this. Okay, energy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the energy states. Okay, E1, E2, E3. Okay, so here we have E5 more than E4. So if we have somehow created more atom in E5 than in E4. अब अगर कोई HNU photon of this matching energy अगर सिस्टम में गिरता है तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी मोर स्टिमुलेटेड इमिशन देन एब्जॉर्प्शन. इमिशन ज़्यादा होंगे, एब्जॉर्प्शन कम होंगे. ओके, सो टू मेक मोर स्टिमुलेटेड इमिशन we need to create this situation. We need to create situation in which there are more atom in certain state than in any lower state. This is called population inversion. This situation is called population inversion. A very important term in laser action, population inversion. एटम्स की जो पॉपुलेशन है, नॉर्मली एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सच ए वे कि हायर स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड देन लोअर. किसी हायर स्टेट में लोअर से कम है, ये नॉर्मल सिचुएशन है. बट हमें स्टिमुलेटेड इमिशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी हायर स्टेट को किसी लोअर से ज़्यादा पॉपुलेट करवाना पड़ेगा. और ये सिचुएशन जो है नॉर्मल से डिफरेंट है, इसलिए इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कह दी. इन्वर्जन इन्वर्टेड है, मतलब इन्वर्टेड. जो नॉर्मल एग्जिस्ट करता है सिस्टम में उसको आपने इन्वर्ट कर दिया, एक तरह से ले सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन विच वी क्रिएट टू गेट एम्प्लीफिकेशन. लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसमें अगर आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट किया, ओके, तो क्या होगा, व्हेन यू अलाउ सम रेडिएशन टू पास थ्रू, देयर विल बी मोर स्टिमुलेटेड इमिशन. और व्हेन देयर आर मोर स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन होगा. एक फोटोन के दो फोटोन बनेंगे. एक फोटोन आया, उसने स्टिमुलेटेड इमिशन किया, दो फोटोन क्रिएट हो गए. ये दो फोटोन सिस्टम में अंदर ही तो रहेंगे, वहीं पे ही. गैस मिक्सचर है या सॉलिड सिस्टम है, मीडियम है, उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे और फिर यही सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, तो ये 2 कैन मेक 4. दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द फोटोन्स. लाइट एम्प्लीफिकेशन का जो प्रिंसिपल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटोन, दैट वी अचीव थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन बाय मेंटेनिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन. एनी पॉइंट? आगे कंटिन्यू करेंगे इसको. इट इज जस्ट द एक बेसिक अभी हमने डिस्कस किया है कि देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन. ओके, बट टू हैव मोर स्टिमुलेटेड इमिशन वी नीड टू हैव पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम. ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे वो आगे देखेंगे, क्योंकि हर लेजर सिस्टम में ये चीज़ होगी. जितना भी लेज़र सिस्टम है, जो भी लेज़र हम स्टडी करेंगे, उन सब के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट वी नीड टू क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्जन. ओके, सो रिलेटेड टू दिस, यहाँ तक अगर कहीं कोई किसी को डाउट है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप बताइए. व्हाट इज इमिशन, व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन? स्टिमुलेटेड इमिशन और इमिशन में फ़र्क क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फोटोन, और जो इमिशन है वो अपने आप से होगा. अपने
आपने किसी एटम को एक्साइट किया, आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ दैट एटम इन दैट स्टेट, एटम विल कम टू ग्राउंड स्टेट। उसने अपने आप से आना ही आना, माइक्रो सेकेंड, मिली नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड टाइम के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा ही आएगा, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट इज ए अनस्टेबल स्टेट। वो टेम्परली एटम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में टेम्परली जा रहा है, वो एकदम वापस आ जाएगा। तो जब वो अपने आप से वापस आएगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। अपने आप से आ गया, अपने आप से अपने टाइम से कभी भी आ सकता है। ओके, बट स्टिमुलेटेड इमिशन में अगर किसी समय कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एंड इन दैट सिचुएशन एनी अदर फोटोन हिट दैट एक्साइटेड एटम। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि देयर शुड बी सम अदर फोटोन विच शुड हिट द एक्साइटेड एटम। वो एक्साइटेड एटम को हिट करेगा, और हिट करने के बाद अब उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हिटिंग फोटोन है, द फोटोन विच हिट द एक्साइटेड एटम, इसकी फोटोन की एनर्जी एच न्यू ये उन दो एनर्जी स्टेट्स के बराबर होनी चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, इन दैट केस एक्साइटेड फोटोन जो है लोअर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ये इंसिडेंट फोटोन सिर्फ उसको डिस्टर्ब करेगा बस, इसको कुछ नहीं होगा। ये फोटोन जैसे चला आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ये सिर्फ उसको डिस्टर्ब करके आगे बढ़ जाएगा। ओके, बट इसमें होगा क्या कि जब एक्साइटेड एटम ग्राउंड स्टेट में आया तो एक नया फोटोन इमिट होगा। दिस न्यू फोटोन ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ सेम वेवलेंथ, बिकॉज ये हुआ ही उसी फोटोन की मैचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से तो हो रहा है ना, इसलिए दोनों फोटोन्स की वेवलेंथ सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। एंड एज पर आइंस्टीन प्रोपोजिशन उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी सेम है, और उनकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भी सेम है। ओके, तो जो स्टिमुलेटेड प्रोसेस से जो इमिट हुआ फोटोन, दैट इज हाईली कोहेरेंट विद द इंसिडेंट फोटोन, और हाईली कोहेरेंट होने की वजह से ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली ऐड करेंगे। यू नो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एडिशन। तो कंस्ट्रक्टिव ऐड होने का मतलब है इंटेंसिटी उनकी मल्टीप्लाई डबल हो जाएगी, सो दैट लीड्स टू एम्पलीफिकेशन। अपोजिट फेज में होगा तब तो नलीफाई कर देंगे, जीरो, इंटेंसिटी जीरो हो गई। सो दिस इज हाउ दिस stimulated emission process helps in creating this light amplification phenomena. Okay, so next time we will extend it further. I think we can stop if you have any doubt. ठीक है?